ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ محکمہ تحفظ ماحول میں جعلی رسیدوں کا معاملہ، ڈی جی ماحولیات کا این ٹی این نیوز کی خبر پر نوٹس۔ قصوروار ثابت ہونے پر 5 انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن طاقتور ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحول میں جعلی رسیدوں کا یہ معاملہ ہے، جس پر ڈی جی ماحولیات نے این ٹی این نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا ہے۔ قصوروار ثابت ہونے پر 5 انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن طاقتور ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لا جا سکی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دریائے سندھ سے نکالے جانے والے 6 کینال کے خلاف گھوٹکی، جی اے سندھ، محاذ اور دیگر قوم پرست جماعتوں کی جانب سے دریائے سندھ کینال نامنظور ریلی نکالی گئی ہے۔ رانا اقبال تفصیلات بتا رہے ہیں۔ بالکل جو ہے اس وقت جو وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے نا سندھ دریا پر جو ہے 6 کینال جو ہے نا نکالے جا رہے ہیں، جس کے خلاف آج جو ہے سندھ پر جو ہے سندھ کا تمام جو ہے نا نوجوان اور سندھ کی تمام قومی جماعتیں جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس وقت میں موجود ہوں سرحد کے اندر، قوم کی جانب سے جو ہے سندھ کے دریا کے جو نکالے جانے والے 6 کینالوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم یہاں احتجاج میں جو شریک ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی آشکار بات ہے کہ یہ سندھو ندی پہ کینال بنا کے چولستان کو اپنا ان کو رخیص کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سندھ کی دھرتی کو وہ غیر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم وفاق کے ساتھ پنجاب حکومت اور سندھ گورنمنٹ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے، لیکن ہم سارے ہی یہ جانتے ہیں کہ پنجاب کا پانی پہ حق نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی نکال رہا ہے۔ وہ ساری سرائکستان کو تباہ کرے گا، سندھ کو تباہ کرے گا، اس لیے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو 6 کینال نکالے جا رہے ہیں وہ سندھ دریا کو بے جان کریں گے۔ ہم آج بھی سراپا احتجاج ہے۔ یہ ہمارا آئے دن جو ہے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہمارا ریفرنڈم ہے۔ یہ سندھ دریا کے اوپر کوئی بھی ڈیم کینال ہمیں قبول نہیں ہے۔ بھارتی سرکار نے بھی تھل کینال، چولستان کینال رد کیے تھے۔ ابھی جو یہ کینال بن رہے ہیں یہ سندھیوں کے مرضی کے خلاف ہے۔ ہم عید کے بعد پنجاب سندھ کے بارڈر پر دھرنا دیں گے۔ جی آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ دشمن صدر پاکستان کی طرف سے جو معاہدہ سندھ دریا پر 6 کینال کا کیا گیا ہے، اسے سندھ قومی محاذ سمیت سندھ کا تمام بچہ نوجوان جو ہے مکمل طور پر مسرت کرتا ہے۔ اور عید کے فوراً بعد ہم جو ہے سندھ پنجاب کے بارڈر پر بھرپور ایک احتجاج اور دھرنا دیں گے۔ جی ادھر تحصیل ساہیوال بنیادی ہیلتھ مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی نجکاری نامنظور ہے۔ پنجاب حکومت کے فیصلے پر طبی عملے کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مہر اسامہ اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ بنیادی ہیلتھ مرکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی نجکاری نامنظور۔ پنجاب حکومت کے فیصلے پر ملازمین کا شدید رد عمل۔ موجودہ نظام کو بہتر بنایا جائے۔ تحصیل ساہیوال کے ملازمین محکمہ صحت نے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈی کافی دنوں سے بند کر رکھی ہے۔ ہڑتال کے باعث مریض علاج معالجے کے لیے رل گئے۔ ملازمین سراپے احتجاج ہیں۔ تحصیل ساہیوال میں 1 رورل ہیلتھ سینٹر، 14 بنیادی ہیلتھ سینٹرز کا عملہ روزانہ احتجاج کر رہا ہے، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد اسامہ، این ٹی این نیوز، تحصیل ساہیوال، ضلع سرگودا۔ لاہور کی یو ای ٹی سب ڈویژن کے ایس ڈی او اور عملے نے لیسکو صارفین کا جینا محال کر دیا ہے۔ لیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نواز بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ یو ای ٹی سب ڈویژن کے عملہ نے لیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ تقریباً 2 منتھ پہلے لیسکو صارفین کے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے کے باوجود صارف کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹر دینے کے عوض پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جبکہ لیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر نے صارفین کی سہولیات کے لیے 28 فروری تک جن صارفین کے نیو اور ڈیفیکٹو میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹس جمع ہیں، ان کے میٹر سب ڈویژن کو جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے باوجود یو ای ٹی سب ڈویژن کے عملہ بما ایس ڈی او کی ملی بھگت سے صارفین کو پریشان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی فوٹیج این ٹی این نیوز نے اپنے ذرائع سے حاصل کر لی۔ اس کا ریلیز بنا کے بھیجیے گا۔ کاسٹم یہ تھا کی کرنا ہے ریلیز بہترین نا میرا تو مجھے نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے کتنے بنانی ہے، کدوں تک بن جائے گی؟ پتہ نہیں یار، بس ہاں جی میں حساب لانے کتنے بنانی ہے پتہ کرنے ہیں۔
ईटी सब डिवीज़न का लाइन सुपरिटेंडेंट बिलाल और एसडीसी माजिद जो के सार्फिन को सहूलत फराहम करने की सारिफ से कहते हैं डिमांड नोटिस के बाद किसने रिलीज बनाना है हमें नहीं मालूम, जो कि इनकी नाअहली को जाहिर करता है। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहद हैदर सार्फिन को हर सहूलत फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। वहीं दूसरी जानिब सब डिवीज़न में नाअहल अफसरान और इनके अमले ने यूईटी सब डिवीज़न के सार्फिन का जीना मुहाल कर रखा है। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहद हैदर को फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुख्तियार कार लतीफ़ाबाद ने अपने अमले के हमरा कार्रवाई की है। कार्रवाई का मजीद अहवाल बता रहे हैं आसिफ जई। लतीफ़ाबाद में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के सिलसिले में मुख्तियार कर लतीफ़ाबाद शेर अली और असिस्टेंट मुख्तियार कर असद जुनेजो ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस मौके पर एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार और ख्वाजा फरोशों का मौके पर चालान भी किया गया, जबकि फल फरोश और दीगर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदार की रेड लिस्ट भी चेक की गई। इस मौके पर NTN न्यूज़ से बात करते हुए मुख्तियार कर लतीफ़ाबाद का कहना था, हमारी तीसरी विजिट है यहाँ पे। पहले में आया था, उसके बाद DC साहब को हम लेके आए थे और जहाँ पे हमें एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की वायलेशन या प्राइस कंट्रोल की वायलेशन नज़र आ रही है, वहाँ पे हमें एक्शन ले रहे हैं। और जहाँ पे हमें कंप्लेंट रिसीव हुई थी, वहाँ पे आज हमें कंप्लेंट रिसीव हुई कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की वायलेशन आ रही है, तो हम खुद आए, विज़िट किए और जहाँ पे देखा वायलेशन आ रही है वहाँ पे उनको फ़ाइन भी किया है। और इंशाल्लाह अगर कल ऐसी कोई और दूसरी वायलेशन हुई तो हम उसको अरेस्ट करेंगे और उनको जेल भेज देंगे। इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ अवाम को रिलीफ फराहम करने में मददगार साबित होंगी। कैमरामैन रिजवान जई के साथ आसिफ जई, NTN न्यूज़ हैदराबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तवानाई की हिदायत पर रेवेन्यू ऑफिसर वापडा विहाड़ी की सब डिवीजन ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मुसद्दिक से। हाँ जी बिल्कुल, चीफ मैप को मुल्तान की हदायत पर अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रेवेन्यू ऑफिसर वापडा विहाड़ी ने सब डिवीजन लुडन ऑफिस में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए गए। मैं इस वक्त खुली कचहरी में मौजूद हूँ और मेरे साथ रेवेन्यू ऑफिसर वापडा विहाड़ी मौजूद है। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए जनाब वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर और हमारे जो मिनिस्टर हैं लगारी साहब, उनके अहकाम के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं, ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और उनके मसाइल उनके घरों पर हल किए जाएँ। इसी सिलसिले में आज भी हमारी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है मैप को लुडन सब डिवीज़न में। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके जो भी मसाइल हैं फौरी तौर पर इनका तदारक किया जाए। जी बिल्कुल, रेवेन्यू ऑफिसर वापडा विहाड़ी का यही कहना है कि खुली कचहरी में हमने अवामी शिकायत और उनके मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। जी अपडेट करेंगे। ढरकी की अजीम कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। ढरकी टाउन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस इलाका मकीन सख्त परेशान है। मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकील कांजू की इस रिपोर्ट में। ढेरकी की अजीम कॉलोनी में टाउन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गली मोहल्ले कचरा कुंडी के मंजर पेश करने लगे। ढेरकी का ड्रेनेज का सारा निजाम दरम बरम हो चुका है। गली मोहल्ले गंदे पानी से भर गए। मच्छरों की वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। गुज़िश्ता 3 साल से जो है ना गंदगी के ढेर लगे हैं। ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो भी मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका है। हमने जो हमारे मुंतखब काउंसलर हैं उनको भी शिकायत की हैं, उनसे मुलाकातें भी की हैं, मगर जो है यहाँ पर कोई भी इंतजामिया की जानिब से या मुंतखब जो हमारे काउंसलर हैं उनकी जानिब से कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की गई। पानी देखिए आपके सामने ये साइड पे भी खड़ा हुआ है, ये सारी तरफ है, जिसकी वजह से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये सेवरेज है भी बिल सेवरेज भी नहीं है, और जिसकी वजह से ये जो पानी है ना नलों की वजह से घरों के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि ये डंप तो यहाँ पर ही हो रहा है ना। तो ये थोड़े मसले मसाइल हैं, इनको देखा जाए, इनको हल किया जाए। शहरियों का कहना है कि ढेरकी टाउन इंतजामिया होश के नाखुन ले। कचरा कुंडी और गंदे पानी की वजह से हम सख्त परेशान हैं। फिलफौर ये पानी निकलवाया जाए ताकि हम सुकून से रह सकें और साफ सुथरा माहौल बेहतर बना सकें। कैमरामैन टीम के साथ अकील कांजू, NTN न्यूज़ ढेरकी। समंदरी में रेस्क्यू 1122 की जानिब से मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी आरिफ महमूद गिल और चौधरी खालिद महमूद गिल ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात देखते हैं सैयद अहमद रजा की इस रिपोर्ट में।
समंदरी में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी आरिफ महमूद गिल और चौधरी खालिद महमूद गिल थे, जिन्होंने फीता काट कर सर्विस का आगाज किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने मोटर बाइक एम्बुलेंसेज के फायदे पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये सर्विस ट्रैफिक जैम और तंग गलियों में बर वक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी में मुआवन साबित होगी। तो ये सर्विस इंशाल्लाह जैसे पहले आप देखते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये मोटर बाइक भी उतने अच्छे तरीके से सर्व करेगी। आज हमें सीएम साहबा ने ये मोटर बाइक का हमें तोहफा दिया तहसील समंदरी के लिए। यहाँ पे जो आम गलियाँ और रश हैं, जिस तरह जफर साहब ने कहा, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती बड़ी गाड़ी, वहाँ पे मोटर बाइक गुजरेंगे और वो हमें वो एमरजेंसी जो है हमें वो सहूलत देंगे। समंदरी में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज शहरियों को बर वक्त और मौसर तिब्बी इमदाद की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे सेहत के निज़ाम में मजीद बेहतरी की तवक्को है। कैमरामैन तोकीर मुगल के साथ सैयद अहमद रजा, NTN न्यूज़ समंदरी। खबर शामिल करेंगे जिला तौंसा से, जहां बढ़ते हुए मरज एड्स के तदारुक और अपनी नस्लों के बचाव के लिए मकीन वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पुकारने लगे हैं। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिला तौसा शरीफ में पंजे गाड़ते एड्स के तदारुक अवामी सतह पर इसे उजागर करने के लिए रैली का एहतमाम किया गया। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था पुरानी सिरिंज को इस्तेमाल करते रहे, पुरानी वाइल्स को इस्तेमाल करते रहे। बच्चे छोटे थे, एक वाइल में अगर 100 सीसी की पैरास्टामोल की वाइल थी तो उसमें 10 दफा सिरिंज डालते थे और उसको 10 बच्चों को लगाते थे। ये सब मरीज भी कह रहे हैं और मैंने भी यही महसूस किया, उनकी हिस्ट्री से मैंने लिया। अगर आप एड्स के बच्चों को देखो तो मोर देन 95% THQ से गुजरते गुजरे हैं। कोई ऐसा बच्चा आपको मिलेगा शायद जिसको तौसा की THQ से ना गुजरा हो। तो मेरे हिसाब में भी यही है जो वो रशा कह रहे। मैं इन मासूम बच्चों की गवाही देने आया। इस मासूम बच्चे ने मुझे बुलाया, मैं इसकी खातिर इसकी गवाही को देने आया हूँ। पहले ये कि तौसा में एड्स के मर्ज को इतनी तेजी से गलत आलात के इस्तेमाल से जो मुसलसल एक ही आले को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें खास तौर पर सिरिंजों का इस्तेमाल है और वो सामने आ चुका है। बहुत सारे केसेस हैं, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तौसा पहले कैंसर ज़दा था, हमारे लोगों को यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आवाज उठाना भी शायद अपने हक के लिए नहीं आता। डॉक्टर साहब, आपकी गवाही हम सब के लिए एक ऐसा मजबूत पिलर है कि हम इस आवाज को मजीद आगे तक पहुँचाने में आपकी गवाही हमारे लिए कारआमद है। मैं मरियम नवाज साहबा से, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, मैं शहबाज शरीफ से एक बार फिर मुतालबा करती हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पर एड्स फैलाने की कोशिश की है, आप उन सबको कटहरे में लाएंगे। तौसा की नस्लों को बचाने के लिए हम वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आला पंजाब से फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालबा करते हैं। ये कहना है मुकर्रिरीन का। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लालियां से, जहां लारी अड्डा पर बस और मुसाफिर वैन में खौफनाक हादसा हुआ। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जहाँ बहाक 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। लालियां से बिलाल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है लालियां में लारी अड्डा पर पेश आया, जहां पर मुसाफिर वैन और बस में तसादम हुआ है। तसादम के नतीजे में 5 अफराद जो है वो मौके पर जाँ बाक हो गए। 16 के करीब जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को THQ अस्पताल लालियां मुंतकिल कर दिया गया है। शदीद जख्मी 6 अफराद को फैसलाबाद अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। MS डॉक्टर इल्ताफ वाना ने अस्पताल में एमरजेंसी नाफज कर दी है। बस में निजी गारमेंट्स फैक्ट्री के वर्कर्स सवार थे। मुसाफिर वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। AC लालियां शाजिया रहमान, DSP सर्कल लालियां चौधरी गजनफर अली गुजर और MS डॉक्टर इल्ताफ हुसैन वाना ने NTN न्यूज़ से बात करते हुए हादसे के बारे में तफसीलन आगाह किया। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन वाना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ हॉस्पिटल लालियां। आज शाम 6:20 पे एक मिसहैप हुआ है लारी अड्डा पे, जहां पे एक वैन ने हिट किया है एक 72 सीटर्स बस को, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ हो गई थी, जिसमें 5 डेड बॉडीज़ जो हैं वो THQ हॉस्पिटल लालियां में लाई गई हैं और 16 इंजर्ड थे जो हमारे पास हॉस्पिटल में लाए गए। हमने उसी वक्त फ़ौरन एमरजेंसी नाफिज की हॉस्पिटल में, पूरे स्टाफ को लालियां को उसको कॉल किया और टाइमली हमने रेस्पॉन्ड किया। उसमें से 12 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको हमने रेफ़र कर दिया DHQ चनियोट और अलाइड हॉस्पिटल में, और 4 पेशेंट जो हैं वो अभी तक हमारे पास एडमिट हैं और वो स्टेबल हैं। तमाम किस्म की मेडिसिन जो है वो उनको टाइमली प्रोवाइड की गई है और की जा रही है, और अल्लाह के फजल से हमने टाइम पे मतलब हर चीज़ को जो है वो कवर कर लिया है। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, लालियां अड्डे पे ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। 16 लोग हमारे पास यहाँ पे आए हैं
जो कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे। 6 को फौरी तौर पे फ़र्स्ट एड दिए है और यानी वो स्टेबल हैं, वो हमारे पास हैं। 4 थे माइनर इंजरी के साथ थे, उनको फ़र्स्ट एड दे के वो चले गए हैं अपने पाँव पे। और 6 लोगों की क्रिटिकल सिचुएशन थी तो उनको फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया है। अब हमारे पास 5 यहाँ पे डेड बॉडीज़ हैं, तो उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और डाटा कलेक्ट करके उनके लवाहकीन से कर रहे हैं हम लोग रब्ता कि जल्द से जल्द उन तक पहुँचाया जाए। ये है जी कि एक बस है कमाल इंडस्ट्री फैसलाबाद की बस आ रही है, वो उनको मज़दूरों को लेके आ रही थी, वो उनके अपने स्टाफों पे छोड़ती है। फैसलाबाद की जानब से वो आ रही थी, वो एक हाईएस है 7011 नंबर था उसका, जो सरगोदा से जा रही थी फैसलाबाद की जानब। ये बिल्कुल लारी अड्डा जो लानी है इसके बिल्कुल करीब ही जानब चनोट, वो बस ने बिल्कुल 2 गाड़ियों को उनको ओवरटेक किया और साथ में बिल्कुल रॉन्ग साइड पे आ गया। इस वजह से हाईएस का उसके साथ टकराव हुआ है। इसके नतीजे में 5 लोगों की मौके पर डेथ हो गई है, 16 लोग जख्मी हुए हैं। 5 में से 3 बंदों की शिनाख्त हो चुकी है, वो सरगोदा के रहने वाले हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसमें वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। थाना लालियां पुलिस की मुद्दत में बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़ लालियां। गुजरात में सियासी और मजहबी जमातों ने भी सस्ते रमजान बाजार लगा दिए हैं। गुजरात से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशारत अफजल भट्ट। जी बिल्कुल, हम इस वक्त ज़िला गुजरात में मौजूद हैं और इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सस्ता बाज़ार लगाया है वो सिर्फ एक बाज़ार है जो कि इंतहाई कम है। इसलिए सियासी और मजहबी जमातों ने आगे बढ़कर आवाम को इस महंगाई में रिलीफ देना शुरू कर दिया है। और TLP जो एक मजहबी और सियासी जमात है उसने भी अपने सूबाई हल्के में बहुत से सस्ते बाज़ार लगाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ इस रमज़ान बाज़ार जो सस्ता बाज़ार लगा हुआ है इसकी इंतज़ामिया के जो सीनियर रुकन हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं वो कौन सी वो सस्ती अशिया दे रहे हैं। जी, TLP पाकिस्तान की तरफ से हमने रमज़ान पैकेज का इनकार किया। इधर हम घी पे, आटे पे, दालें, चाय और तमाम जो अशिया रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं सब पे मुनासिब पैकेज लगाया हुआ है। मार्केट से तकरीबन हर चीज़ पे 20, 30, 40 और 50 और 100 तक भी कम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इससे वाम को रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि ये गुजरात का मज़ाफ़ाती कस्बा है फतेहपुर, यहाँ पे ये सस्ता बाज़ार लगाया गया है और यहाँ पे हर चीज़ 20, 30, 40, 50 रुपए तक भी सस्ती दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, ये इनसे पूछते हैं इन्होंने सामान खरीदा है, इनको कितना रिलीफ मिला है। ये बाज़ार बहुत सस्ता जनाब, हर चीज़ सस्ती है, घ्यो सस्ता, चीनी सस्ती है, हर चीज़ सस्ती है। ये बाज़ार नहायत ही सस्ता और वाम के लिए एक सहूलत है। इतनी महंगाई में ये लाभदायक वाले इनकी लोगों की पूरे फतेहपुर की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि आले दुआले जितने गांव हैं इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इधर नज़दीक तरीन ये गुजरात जलालपुर लगाते हैं, को फतेहपुर में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि सस्ते बाज़ार लगाएं और वाम को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी है, शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ज़िला गुजरात या गुजरात सिटी से हटकर मज़ाफ़ात में भी सस्ते बाज़ार लगाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ बिशारत अफजल भट्ट, NTN न्यूज़ गुजरात। अब रुख करते हैं डस्का का, जहां 5 शाहराहों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। 55 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली शाहराहों में वजीराबाद रोड और बैंक रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद जानते हैं डस्का से शाहिद रियाज की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून की सुलह के सम्राट डस्का के शहरियों को मिलना शुरू हो गए। सूबाई वज़ीर मियां ज़ीशान रफ़ीक की हिदायत पर सिटी सदर मुस्लिम लीग नून चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरा मोहम्मद अफसल मंशा ने पहले तजावजात ऑपरेशन के साथ में आने वाले ताजरों को गैर यकीनी सूरत से निकालने के लिए पैमाइश मुकम्मल करवाई और अब 55 करोड़ की लागत से तमीर होने वाले 5 रोड्स के सिलसिला में वज़ीराबाद रोड, बैंक रोड की तमीर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरा मोहम्मद अफसल मंशा, सदर मरकजी अंजुमन ताजरा मियां मोहम्मद अशरफ समेत साबिक नाज़मीन, काउंसलर्स और लीगी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज़ डस्का। अहम खबर से आगाह करेंगे। तहसीलदार सीलावाली के रीडर को 50,000 रुपए रिश्वत देते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ के लियार से। जी बताइएगा।
جی بالکل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا تصور بسال نے ریڈ کر کے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں تحصیلدار سیلاوالی کے ریڈر کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیلاوالی کے نوائیگاؤں چک 146 شمالی کے رہائشی عمران نے درخواست دی کہ تحصیلدار سیلاوالی کے پاس میرا تقسیم کا کیس چل رہا ہے، جس میں تحصیلدار ایجاد کے ریڈر حبیب اللہ نے پہلے بھی ہم سے 50,000 روپے رشوت وصول کی ہے اور آج پھر 50,000 روپے رشوت اور وصول کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تصور بسال نے ریڈ کر کے ملزم حبیب اللہ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور رشوت خور ریڈر کو حوالات میں بند کر کے اس کے خلاف FIR درج کر دی ہے اور تحصیلدار سیلاوالی ایجاد کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ جی بورے والا کی تحسین انتظامیہ اور سول سوسائٹی تاجروں کے اشتراک سے بورے والا میں 21 مارچ کو بلیسڈ فرائیڈے منانے جا رہی ہے، جس میں صارف کو سستے داموں اشیاء فروخت کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں سید یاسین بخاری کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا میں تحصیل انتظامیہ، سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور بزنس کمیونٹی کے اشتراک سے 21 مارچ کو بلیسڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے، جس میں دکاندار حضرات صارفین کو بغیر کسی منافع کے زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بورے والا ملک فاروق احمد کا کہنا ہے کہ بلیسڈ فرائیڈے بورے والا میں پہلی مرتبہ منایا جا رہا ہے۔ اس روز بورے والا کی شہری فیملیز کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئیں، اس سے آپ کو سستی شاپنگ کا موقع میسر آئے گا۔ 21 مارچ اور 20 رمضان المبارک کو بورے والا میں پہلی دفعہ بلیسڈ فرائیڈے جو ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس میں سول سوسائٹی، انجمن تاجران، میڈیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں سے، بورے والا کی عوام سے، کہ بلیسڈ فرائیڈے والے دن آپ مارکیٹ میں آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں۔ سول سوسائٹی کے کنوینر عبدالرؤف چودھری کا کہنا ہے کہ اس دن کو منانے کا مقصد تمام طبقات کو یکساں سہولیات مہیا کرتے ہوئے سستے داموں اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے، تاکہ عید کے موقع پر سفید پوش چہروں پر بھی مسکراہٹ لائی جا سکے۔ 21 مارچ بروز جمعۃ المبارک بلیسڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول سوسائٹی اور مرکزی انجمن تاجران باہمی اشتراک سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس دن بورے والا کی عوام کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے نہایت سستے داموں ود بگ ڈسکاؤنٹس فرائیڈے سیلیبریشن بلا شبہ انتظامیہ، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران کا اچھا اقدام ہے، جس سے سفید پوش شہریوں کو سستے داموں عید کی شاپنگ کا موقع میسر آئے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید یاسین بخاری، NTN نیوز، بورے والا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان بٹ نے میاں والی کا دورہ کیا ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان سہولت بازار میں مختلف اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان بٹ نے میاں والی کے دورے پر ماڈل بازار رمضان سہولت بازار کو چیک کیا۔ رمضان سہولت بازار میں لگائے گئے مختلف اسٹال کا معائنہ کیا، اسٹال پر اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ رمضان سہولت بازار میں سبزیاں، پھل، دالیں، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش اور ارزان نرخوں پر دستیاب ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے، کم آمدن والے طبقے کو زیادہ ریلیف پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تمام اشیاء کے نرخوں کو روزانہ بنیاد پر چیک کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آج یہاں پر میاں والی آئی ہوں اور مجھے بڑی اچھا لگا یہاں آ کر، اور یہاں میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی اولین ترجیحات میں سے یہ ہے کہ مہنگائی پہ قابو پانا اور کھانے پینے والی اشیاء ضروری جو روزمرہ کی ہوتی ہیں ان کو کم قیمت میں رکھنا اور ہمارے جو کم آمدن والا متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف پہنچانا۔ یہ رمضان 15 سال کا سستا ترین رمضان ہے کہ جب آلو، پیاز، ٹماٹر 40 روپے کلو، 50 روپے کلو اور 60 روپے کلو مل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 80,000 لوگوں کو یہ پے آرڈرز ملے اور اس میں سے ابھی تک میں دیکھ رہی تھی کہ کافی تقریباً 80% سے زائد لوگوں کو کیش بھی وصول ہو چکا ہے اور صوبہ بھر میں یہ 30 لاکھ لوگوں کو میسر آیا۔ حالیہ رمضان 15 سال میں سستا ترین رمضان ہے۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 30 لاکھ افراد کو 30 ارب روپے کی امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع میاں والی میں 80,000 غریب افراد کو رمضان نگہبان پیکج کے تحت چیک ملے ہیں۔ لوگوں کو ان کا حق ان کے دہلیز پر پہنچایا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں رمضان نگہبان پیکج کے رقوم کے لیے صوبہ بھر میں 18,000 برانچیں
काउंटर कायम किए गए हैं। जिला मियांवाली में भी इस हवाले से 265 सेंटर कायम किए गए हैं। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, NTN न्यूज़ मियांवाली। अब रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। चंद रोज बाद कटाई का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा, मगर हुकूमती सतह पर गंदम का रेट मुकर्रर न करने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा रफीक मुगल से। जी रफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चंद रोज़ बाद जो है गंदम की फसल की कटाई का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किसान खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना ये है कि पिछले साल भी हुकूमत ने किसानों के साथ हाथ किया, हुकूमती सतह पर रेट कम दिया गया, जो कि किसानों ने हुकूमत को गंदम भी फ़रोख्त की। बाकी जो गंदम उनसे नहीं खरीदी गई उसके बाद उन्होंने ओपन मार्केट में भी फ़रोख्त की। किसानों का कहना है कि हज़ारों मन गंदम घरों में पड़ी जो वो ख़राब हो चुकी है, इनको नुकसान भी हुआ है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से भी मुतालबा किया है कि गंदम की फसल पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, जहाँ पे गंदम जो महंगी जो है खादे, महंगा पानी लगाकर औसतन गंदम की फसल भी अच्छी है, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर जो है इनको रेट ना दिए गए, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। इन्होंने अरबाब इख्तियार से और कमिश्नर मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से उन्होंने मुतालबा किया है कि गंदम के रेट मुकर्रर किए जाएँ और इनसे जो है किसानों से औसतन जो गंदम जैसे ज़्यादा हुई है इनसे भी ज़्यादा मिकदार में ख़रीदी जाए, ताकि गंदम बेच कर ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकें। जी, रमज़ान के दूसरे अशरे में ईद की तैयारियां तेज़ हो जाती हैं। बढ़ती महंगाई और दर्जियों के नखरों ने ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद आमिर तालिब से। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा टेलर मास्टर की शॉप पर। 15 रोज़े गुजरने के बाद टेलर मास्टरों ने बुकिंग बंद कर दी है। टेलर मास्टरों का कहना है कि 15 रोज़े से पहले हमने बुकिंग अपनी जारी रखी थी, 15 रोज़े के बाद हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सूट और सी सकें। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, टेलर मास्टर ने सूट पकड़ने से इनकार कर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर अपना एक सूट लेके आया था, तो टेलर मास्टर साहब कहते हैं जी कि सूट नहीं सी सकता। तो हम ये जो लिबास है हमारा कौमी लिबास है, इसको हम पहन के ईद पढ़ते हैं, पुरजोश तरीके से ईद मनाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि टेलर मास्टर से कि हमारा सूट सी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरियों का कहना है कि हमें सूट सी कर दिया जाए। टेलर मास्टरों के नखरे इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं और शहरी ख्वार हो रहे हैं। शहरी सिले सिलाए सूट खरीदने पर मजबूर हैं। जी, माह रमज़ान में जहां लोग इबादतों में मसरूफ हैं, वहीं मुनाफाखोर भी आवाम को लूटने में सरगर्म है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ब्रॉयलर माफिया बेलगाम हो गया है। मुर्गे का गोश्त मन माने दाम में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है वो जारी है। लोग रोज़ा रख कर और नमाज़ें पढ़कर अपने रब को राज़ी करने में मसरूफ़ हैं। वहाँ पर चंद जो है मुनाफाखोर भी सरगर्म हो चुके हैं। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने की बात की जाए तो माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है, जिनमें सब्जियां, फ्रूट और गोश्त शामिल है। अगर गोश्त की बात की जाए तो मटन और बीफ तो पहले भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। गरीब आदमी की जो खुराक है वो सस्ती प्रोटीन ब्रायलर गोश्त है। लेकिन माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जहाँ पर लोग सहरी और अफ्तारी के लिए ब्रायलर गोश्त को तरजीह देते हैं, उनकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है और ब्रायलर माफिया जो है ना वो बेलगाम हो चुका है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर गोश्त की जो कीमतें वो पिछले महीने 580 से 600 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी और पिछले महीने की निस्बत इस महीने जो है ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 30 से 40% इजाफा हो चुका है। और अब जो माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो है ब्रायलर गोश्त जो है वो 700 से 750 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया की बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने दफातर तक महदूद हैं, जिनकी मौसर हिकमत अमली ना होने की वजह से जो है ना वो ब्रायलर माफिया बेलगाम हो चुका है। इसके अलावा शहरियों की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि ब्रायलर गोश्त की जो कीमतें हैं उनको कम किया जा सके, ताकि जो है रोज़ादार हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। जी, अपडेट करेंगे। अब्दुल हकीम पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुतादिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की नकदी और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर अब्बास सियाल की इस रिपोर्ट में। अब्दुल हकीम पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 गैंग के 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने 2 डकैत गैंग और 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए
11 मोटरसाइकिल, 4,80,000 रुपए नकदी और 4 अदद नाजायज पिस्टल 30 बोर बरामद किए। गिरफ्तार मुलजमान से राबरी और चोरी के 25 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं, जबकि मजीद इंटेरोगेशन जारी है, जिससे मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। डीपीओ इस्माइल खाड़क ने कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ शोबान खालिद गुराया और उनकी टीम को शाबाश दी, जबकि बरामदशुदा मोटरसाइकिलों की चाबियां और नकदी मुद्दईयान के हवाले कर दी। डीपीओ का कहना था कि पुलिस का फर्ज माशरे में अमन व अमान कायम रखना और जराइम पेशा अनासर को कानून के शिकंजे में लाना है और ये सिलसिला बिला तातल जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा अख्तराबाद से आल, NTN न्यूज, अब्दुल हकीम। मुल्क के बेशतर शहरों में ईद करीब आने पर शहरी अपनों में ईद करने के लिए सफर करते हैं। बस और वैगन मालिकान रश का फायदा उठाते हुए किरायों में 200% तक इजाफा कर देते हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हाजी उमर हसन। एक तरफ तो शहरी अपनों में ईद करने के लिए दूसरे शहरों से मुसाफत तय करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर हजरात ईद से पहले ईद लूटने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ईद के मौका पर सफरी किराया जात में 200% तक इजाफा कर दिया जाता है, जिससे मुसाफरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद इस अजियत से बचने के लिए पाकिस्तान रेलवे के स्टेशन की जानब वक्त से पहले सीट बुक कराने के लिए राब्ते में है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर इस वक्त एक मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जान लेते हैं। असी आए हैं जी इत्थे रेलवे स्टेशन ते सीट बुक कराने वास्ते, क्योंकि ईद नज़दीक आउंदियां ही ते बसां वाले 1000 वाला किराया 2500 कर दिंदे ने, ते इस वजह ते फैमिली दे नाल जलील होना पैंदा, ते इसे वास्ते असी पाकिस्तान रेलवे दा रुख कीता ते इत्थे ओही किराए ने कि जेड़े पहलों सी, ते असी अपने सीटां बुक करवा रहे हैं। तो शहरियों की बड़ी तादाद भी आ रही है सीटां बुक करवाने वास्ते, क्योंकि सारे इतने मामला जेडे ना रेलवे पाकिस्तान के अच्छे जा रहे हैं। अजी, जैसा कि आपने मुसाफरों की गुफ्तगू सुनी, मुसाफरों का मज़ीद कहना है कि हर मुसलमान ने ईद करना होती है। आला हुकाम को चाहिए कि ईद के मौका पर सफरी सहूलियात को बेहतर बनाएं। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिर हजरात रश से बचने के लिए एडवांस सीटें बुक करवा सकते हैं। हमारा ऑफिस हर वक्त खुला है। जी। दूसरी जानिब सियालकोट में भी ईद करीब आते ही लारी अड्डा में ट्रांसपोर्ट हजरात मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने में मसरूफ हैं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अली हसन से। जी बताइएगा। सियालकोट लारी अड्डा पर मौजूद, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक यहाँ पर जो किरायों की टैक्सीज हैं वो वेज़ा कर दी गई हैं, मगर किरायों में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या ना हुई है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि घरों के लिए जाना चाह रहे हैं, ईद करने के लिए घरों में जाना चाह रहे हैं, मगर उनके पास जो किराए का जो बताया जा रहा है वो किराया बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। सर कहा भाई भाजी मैं लाहौर जाना है, किराया बड़ा लाइट पे होते हैं, सवारी किराया बड़ा मंगते हैं, की करिए होना किराया घट करो। अल्लाह दे बंदे हो, लोग बड़े तंग हुए ने, ईद दिन ने किराया बड़ा मांगते रुपए, घट करो, कितने जाइए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस चीज़ का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जाता है कि जो बसों के अंदर जो किरायों के अंदर इजाफा किया गया है इस पर कमी वाक़या की जाए, ताकि शहरी अपने घरों में जाकर ईद करें और का मज़ा जो है वो दोबारा करें। जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।